everyone, welcome to another class of accounts, and in today's class we'll be taking up one new question with which we'll be preparing our ledgers again. Okay, so today we'll be taking up question number 1 from your book, practical questions. Okay, practical questions, you see the first question that you have in practical questions that we'll be taking up. Okay, so here if you see, we are asked to journalize. Okay, it is said that journalize the following transactions, post them into ledger, balance the accounts and prepare a trial balance. So basically we are asked to do everything here. Trial balance we did not come across till now, so we cannot prepare. Now if we prepare also, we will have to prepare our ledgers first. From ledger whatever balances we get at last, okay, ledger में जो बैलेंस सीडी मिलता है ना, उसको हम लोग डालते हैं ट्रायल बैलेंस में. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा हम लोगों का बाद में, पहले लेजर प्रिपेयर करना पड़ेगा. और लेजर प्रिपेयर करने के लिए जर्नल. ठीक है, तो जर्नल यहाँ पे हम लोग प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये वाला जो स्टेप है इसको हम लोग स्किप कर देंगे. ठीक है, if you want you can very well prepare. Okay, but sometimes it is also possible that in exams you might be given transactions directly from which you will have to directly enter them into your ledger. So in that case it will be a little bit difficult if you don't do the practice. So we'll be taking up this question only, since we don't have any such question in our book. So we will take up this question. We will be doing the transactions directly, means we will be solving the transactions directly by putting the entries in our ledger. Okay, so here we won't be preparing journal. If you want you can very well prepare, there is no problem with that. Okay, so we will try to analyze the transactions and we will directly put them into the transaction in the respective accounts, ledger accounts. Okay, so first if you see, I have already prepared this cash account and capital account. Now this two items would be there if a business is newly starting. Okay, so here if you see the first transaction, 2017 March 1, it is written Shyam Sundar and Sons commenced business with cash 80,000. So Shyam Sundar is starting his business with cash 80,000. तो इसका जर्नल क्या हो जाएगा? इसका जर्नल हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. दिस विल बी आवर जर्नल एंट्री. ओके, तो इसका एंट्री कैश बुक में और कैपिटल कैश अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है, तो कैश अकाउंट में जब एंट्री करेंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट. यानी कि कहाँ पे ये आ जाएगा? डेबिट साइड में, क्योंकि टू हम कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट साइड में. और ये हो गया अपना क्रेडिट साइड. ठीक है, अच्छा, तो ईयर इज व्हाट? 2017, राइट, एंड आवर डेट विल बी मार्च 1. Okay, so in March 1 what entry will be doing in our cash book? Cash account debit. What is the amount? 80,000. तो 80,000 कैश अकाउंट में डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे डेबिट साइड में लिख देंगे कैश अकाउंट में 80,000. Okay, so here we are done with our amount. Okay, now what do we write here? कैश अकाउंट के ऑपोजिट साइड में क्या है? टू कैपिटल. तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट. फाइन, आवर फर्स्ट एंट्री इज डन. नाउ आवर फर्स्ट एंट्री इज नॉट फुल्ली डन. अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री करना है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन में कैश और कैपिटल दोनों आ रहा है. तो कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे? कैपिटल के ऑपोजिट में क्या है? कैश अकाउंट डेबिट. ठीक है ना, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है. तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में वी विल बी डूइंग द एंट्री. ओके, ऑन 2017 March 1 again. Okay, so what will be the entry? By cash account.
तो डेबिट साइड में हम लोगों को पता है सारा टू आ जाता है ना, क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे तो सारा बाय हो जाता है। तो इसीलिए जो भी डेबिट हो रहा है उसको अगर यहाँ पे लिखेंगे तो बाय, जो भी डेबिट हो रहा है उसको लिख देंगे। ठीक है, तो ये अपना डेबिट साइड है तो मैंने साइड्स लिख दिया। ठीक है, बाय कैश अकाउंट व्हाट विल बी द अमाउंट 80,000 अगेन। ओके, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया 80,000, खत्म, अपना पहला ट्रांजैक्शन खत्म। अभी अपने सेकंड ट्रांजैक्शन पे चले जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अभी ये जो परचेज गुड्स फॉर कैश है इसके लिए हम लोगों को परचेज अकाउंट भी खोलना पड़ेगा। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग क्या देख लेंगे कि कैपिटल अकाउंट में और कोई ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो वो पहले चेक कर लेते हैं। ओके, या सो नेक्स्ट वी हैव मशीनरी परचेज फॉर कैश, इसमें भी कैपिटल नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव परचेज गुड्स फ्रॉम रघु दिलीप, नॉट नो एंट्री इन कैपिटल अकाउंट। रिटर्न गुड्स, नो एंट्री इन कैपिटल अकाउंट। पेड टू रघु, नो एंट्री इन कैपिटल अकाउंट। सोल्ड गुड्स, नो एंट्री इन कैपिटल अकाउंट। रिसीव्ड कैश, ये भी नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। पेड कैश टू दिलीप नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स नहीं आएगा। पेड रिसीव्ड कमीशन विथड्रॉन by proprietor for personal use, no. So by proprietor, if you can say goods are withdrawn, here it is said withdrawn by proprietor for personal use, that means cash withdraw हो रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, इसमें भी कैपिटल अकाउंट के साथ कोई एंट्री नहीं है। नेक्स्ट वी हैव परचेज्ड a fan for proprietors use, against this is drawings। so capital account में हम लोगों ने सारे एंट्रीज पढ़ लिए, कोई एंट्री और होगा नहीं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग का यहीं पे खत्म है। कैपिटल अकाउंट का यहाँ पे ये अगर इसको अगर हम लोग टोटल लिखेंगे तो टोटल अपना कितना आ गया 80,000। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे 80,000, पर यहाँ पे 80,000 है नहीं तो उसको क्या बनाएंगे, बैलेंस सीडी। ओके, सो 2017 मार्च, हमेशा मंथ के एंड में, मार्च में 31 डेज है तो मार्च 31 का ही डेट देंगे। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी हाउ मच 80,000। तो जितना टोटल बैलेंस है वही अपना बैलेंस सीडी भी है यहाँ पे। तो कैपिटल का बैलेंस कितना मिल गया, बैलेंस सीडी 80,000। अब जो हम लोग ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे थे, तो ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल का जो बैलेंस सीडी है उसी को दिखाएंगे। तो कैपिटल का बैलेंस सीडी क्या है 80,000, दिस विल बी शोन इन आवर ट्रायल बैलेंस अगेन। ओके, सो दिस वाज आवर कैपिटल अकाउंट, वी डोंट हैव एनी अदर you can say entries in our capital account, so we rub this off. You please write it down in your copy. Now next we will be preparing purchases account. Okay, all right, so let us prepare our next account, that will be purchases account. Now second entry, second March का entry क्या लिखा हुआ है, purchase goods for cash। तो परचेज गुड्स फॉर कैश अगर है तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, आई एम राइटिंग द जर्नल एंट्री सो दैट यू कैन गेट द कनेक्ट बिटवीन दिस लेजर्स एंड द जर्नल्स। ओके, सो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट में एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में क्या एंट्री हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। सो हियर लेट अस राइट डाउन March 2 टू कैश अकाउंट। और परचेजेस अकाउंट में डेबिट कितना हो रहा है, कितने का परचेज कर रहे हैं हम लोग 36,000, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000। Okay, so this entry is done in purchases book. Now we do in our cash book. It is written to cash account. तो कैश का ऑपोजिट में क्या है, परचेजेस, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, बाय परचेजेस। ओके, सो बाय परचेजेस account. Now date we did not write, so 2017 March 2nd. Okay,
मार्च 2 व्हाट इज द अमाउंट 36,000। तो कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 36,000, कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ था 36,000, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया 36,000। फाइन, नाउ this entry, second entry is done. Now let's move to our third entry. Machinery purchased for cash 4,000। ठीक है, तो मशीनरी परचेज किया, तो यहाँ पे परचेजेस की जगह पे क्या आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड एसेट, so machinery account debit. What would be the entry in our cash book again? By machinery account, right? तो इसका ऑपोजिट में जो है वो एंट्री इधर आ जाएगा. दिस इज ऑन डेट इज 3rd, राइट? सो 3rd को एंट्री कर रहे हैं बाय machinery account. Amount would be, what is the amount? 4,000. सो 4,000 का हम लोगों ने मशीनरी खरीद लिया, कैश अकाउंट में दिखा दिया. अभी हम लोग को मशीनरी अकाउंट में दिखाना है. ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, ऐसे ही करके लिखेंगे. ठीक है, सपोज ये मशीनरी अकाउंट है. ठीक है, मशीनरी अकाउंट है, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट. ओके, सो मशीनरी अकाउंट में यहाँ पे कितना लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, डेट विल बी 3rd एंड वी विल राइट डाउन टू कैश अकाउंट 4,000. तो मशीनरी अकाउंट में भी एंट्री हो गया. टू कैश है ना मशीनरी के ऑपोजिट, तो टू कैश अकाउंट. फाइन, अब ये मशीनरी अकाउंट का भी एंट्री हो गया. अब आता है हम लोग के नेक्स्ट एंट्री में. ठीक है, नेक्स्ट एंट्री वी हैव परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रघु एंड दिलीप. अब ये जो परचेज किया, किससे परचेज किया उसका नाम दिया हुआ है, एंड इट इज नॉट मेंशन वेदर इट इज कैश और क्रेडिट परचेज. इन दैट केस वी विल कंसिडर इट एज अ क्रेडिट परचेज. तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, किससे परचेज किया हम लोगों ने, दिलीप. माय गॉड, अच्छा, so here we have purchased from Raghu and Dilip. So purchases account debit, purchases account debit to Raghu Dilip, to Raghu's account. तो रघु भी अपना क्रेडिटर हो गया, टू दिलीप्स अकाउंट, दिलीप भी अपना हो गया क्रेडिटर. ओके, अभी फिर से हम लोग के परचेजेस अकाउंट में चले जाते हैं. सपोज ये अपना अभी परचेजेस अकाउंट है. ठीक है, तो परचेजेस अकाउंट तुम लोगों का बना हुआ है ऑलरेडी, तो उस पर एंट्री करना है. ठीक है, मशीनरी अकाउंट जो नया बना है उसको वैसे ही रखो, टू कैश 4,000 वाला. ठीक है, अभी यहाँ पे परचेजेस अकाउंट में अपना पहले कितना था, 36,000 था, राइट? अब परचेजेस अकाउंट में फिर से एंट्री होगा, क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुज अकाउंट टू दिलीप्स अकाउंट. ठीक है, तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट में डेबिट टोटल कितना हो रहा है, टोटल इट विल बी 52,000 डेबिट, 52,000 डेबिट हो रहा है, राइट? रघु से परचेज किया 22,000 का गुड्स और दिलीप से परचेज किया 30,000 का गुड्स. तो टोटल मिला के हम लोगों ने कितने का परचेज किया, 52,000. ठीक है, अभी इसका एंट्री यहाँ पे कैसे करेंगे, जब ऐसा कंपाउंड एंट्री आता है तो कैसे करेंगे वो देख लो यहाँ पे. ठीक है, परचेजेस हम लोगों ने किया 4th मार्च में. सो इसको कैसे लिखेंगे, परचेजेस के ऑपोजिट में क्या है, टू रघुस अकाउंट, टू रघुस अकाउंट. अमाउंट विल बी हाउ मच, 22,000 का गुड्स खरीदा रघु से, है ना? तो टू रघुस अकाउंट हम लोगों को 22,000 ही लिखना पड़ेगा. ओके, जितने का परचेज किया रघु से उतना ही अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 22,000. फाइन, ये हो गया. अब दिलीप से भी परचेज किया तो वो भी लिखेंगे सेम डेट में, टू दिलीप्स अकाउंट. यहाँ पे डेट लिख ही देते हैं 4th को. ठीक है, टू दिलीप्स अकाउंट. कितने का परचेज किया दिलीप से, 32,000, सॉरी 30,000, राइट? 30,000. So 30,000 good we have purchased from Dilip and 22,000 good we have purchased from Raghu. And now you see this journal entry was like this, right? Purchases account debit this much, 22,000 from Raghu and 30,000 from Dilip, right? तो यही एंट्री को हम लोगों ने बस कन्वर्ट करके यहाँ पे परचेजेस अकाउंट में डाला. ठीक है, अब सपोज दिलीप का अकाउंट, ठीक है, ये हो गया अपना परचेसेस अकाउंट में एंट्री खत्म. ठीक है, अभी दिलीप का अकाउंट में चले जाते हैं. इसको हम लोग थोड़ा रब ऑफ कर लेते हैं. ओके,
Suppose this is Dilip's account or Raghu's account now. Let us say Raghu's account. Now in Raghu's account, how will we do this entry? तो इसको थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है. मान लो कि ये है नहीं, रघु का अकाउंट अभी खाली है, अभी जस्ट एंट्री करने वाले हम लोग, ठीक है. दिस इज ऑन 4th, राइट. तो 4th में रघु के अकाउंट में कैसे एंट्री करना है, जस्ट सी. रघु यहाँ पे क्या है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रघुस अकाउंट. तो रघु के अकाउंट में क्रेडिट कितना हो रहा है, 22,000. तो रघु के अकाउंट में क्रेडिट कितना करना है, 22,000. बट व्हाट विल वी राइट डाउन हियर, रघु के ऑपोजिट में क्या है, परचेजेस. तो क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट. तो रघु के अकाउंट में यही एक एंट्री हो गया अभी, ठीक है. ये है नहीं, ये इग्नोर करो, ये परचेसेस अकाउंट का एंट्री है. ओके, सो रघु के अकाउंट में ये एंट्री हो गया. अभी आते हैं दिलीप के अकाउंट में. सपोज अभी ये दिलीप का अकाउंट है, ठीक है. दिलीप्स अकाउंट बाय परचेजेस हाउ मच, उससे कितना परचेज किया था, 30,000. सो दिलीप इज आवर क्रेडिटर. सो दिलीप्स अकाउंट क्रेडिट 30,000. फाइन. तो रघु के अकाउंट में भी एंट्री हम लोगों ने कर दिया, दिलीप के अकाउंट में भी हम लोगों ने एंट्री कर दिया. नेक्स्ट एंट्री वी हैव रिटर्न गुड्स टू रघु. अभी रघु से हम लोगों ने परचेज किया था कितने का गुड्स, अभी फिर से रघु के गुड्स में अकाउंट में चले जाते हैं. नाउ दिस इज रघुज अकाउंट. ओके, तो रघु के अकाउंट में हम लोगों ने परचेज कितना किया था, 22,000 परचेज किया था. अभी उसको कर रहे हैं रिटर्न गुड्स, ठीक है. तो रिटर्न कभी भी किसी भी क्रेडिटर को अगर गुड्स रिटर्न कर देंगे तो वो हम लोग का क्या हो जाता है, परचेज रिटर्न्स, ठीक है. तो परचेज रिटर्न्स को हम लोग कैसे लिखते हैं यहाँ पे, रघुज अकाउंट डेबिट, रघुज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. Raghu's account debit, what will be the amount here, the amount that we are returning. So what would be the amount of return here, 4,000. तो रघु से परचेज किया था हम लोगों ने 22,000 का गुड्स, अब रिटर्न कितना करेंगे, 4,000 का गुड्स, ठीक है. तो 4,000 का गुड्स को हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सपोज ये मान लो है नहीं, ठीक है. तो ये रघु के अकाउंट में है नहीं अभी. So we are returning the goods on 6th. To purchase returns account 4,000. ओके, तो रघु के अकाउंट में क्या हो गया, टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट. बस खत्म, एंट्री खत्म. रघु के अकाउंट में एंट्री कर दिया. अभी जब परचेज रिटर्न्स अकाउंट बनाएंगे तो परचेज रिटर्न्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय रघुस अकाउंट. ओके, सो दिस विल बी आवर एंट्री इन रघुस अकाउंट, ठीक है. अब नेक्स्ट एंट्री अपना क्या है, पे टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. ओके, तो अभी रघु को पेमेंट कर रहे हैं इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट. और कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 17,500. अभी रघु से हम लोगों ने परचेज किया था कितने का गुड्स, 22,000, ठीक है. 22,000 में से हम लोगों ने 4,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया. तो अभी उसको पेमेंट कितना करना बाकी है, 18,000 पेमेंट करना बाकी है. समझ में आ गया, इतना हम लोगों ने परचेज किया था, उसमें से 4,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया, तो वो पेमेंट डेफिनेटली नहीं करेंगे. तो बचा कितना, 18,000. सो दिस 18,000 अमाउंट वी नीड टू पे टू रघु, बट वी आर नॉट मेकिंग दैट पेमेंट. हम लोग कितना पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, 17,500. तो जितना पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, रघुस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट. जितना पेमेंट कर रहे हैं टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है. इसके अलावा हम लोग फुल सेटलमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी यहाँ पे होगा, ठीक है. तो पेमेंट जब कर रहे हैं तो डिस्काउंट हम लोगों को क्या होगा, रिसीव होगा. तो हम लोग पेमेंट कितना कर रहे हैं, पेमेंट खाली हम लोग कर रहे हैं 17,500. तो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव्ड. टू डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी हाउ मच, अमाउंट इज
17,500, दैट मीन्स 500 रुपीज़। तो 18,000 के जगह पे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं खाली 17,500, दैट मीन्स 500 रुपीज़ विल बी आवर डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, अभी इस एंट्री को रघु के अकाउंट में कैसे लिखेंगे? रघु के अकाउंट के ऑपोजिट में क्या है? 2 कैश अकाउंट 2 डिस्काउंट रिसीव। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस विल बी ऑन द डेट ऑफ 8th, राइट? 8th को एंट्री करेंगे 2 कैश अकाउंट 17,500, 2 again same date, 2 discount received account 500 rupees. Okay, so this will be our entries. Now you see debit sides total and credit sides total of रघु's account will be same. तो आप जब इसका टोटल करेंगे यानी कि रघु का अकाउंट जो कि अपना क्रेडिटर था उसका हम लोगों ने पूरा सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, फाइन, रघु's account is over. Now our cash account is still left, our purchases account is still left. We need to do more entries there. Okay, I'm ending the class for today here. Next day we'll be continuing with this question. Okay, thank you so much everyone. Since there is less time, I don't want to extend the video very long. Okay, so that's why I'm leaving it here. Purchases account, cash account, ये सब के लिए जगह रख दो, नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और परचेसेस अकाउंट में और भी बहुत सारे एंट्रीज आ जाएंगे। जो जो एंट्रीज मैंने पहले करवाए उसको खाली लिख के रखो। ठीक है, और ये अपना रघु का अकाउंट है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द आइटम्स। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन एंड those who can solve this question, you can please solve this question, and or else we will do it in our next class. Thank you so much everyone and have a nice day.